Hi student, welcome to the Om Sai Academy. Today we are going to learn the Newton's third law. We already covered the Newton's first law and second law, but don't worry, we will upload the video about that in detail. But today anyhow we are going to do some kind of revision on Newton's first law, second law, and then we will jump to the Newton's third law. Okay, I hope you remember, but still if you don't, then we will go through once more again. Okay, so first law. What is Newton's first law? Can anyone tell me what is Newton's first law? I hope you studied at home. Sorry, come speak loud. Exactly, very good. So I'll state it again, and then but you stated already correctly, the balance and unbalanced force. So the object, now if you can look at the board, there is what it is saying, then object continues to remain at rest or in a state of uniform motions along a straight line unless an external unbalanced force act on it. Okay, so jab tak if there is no force apply on in object, it always remain at rest. If you apply the force, then only that body moves. So this is what न्यूटन ने हमें कहा था. न्यूटन ने क्या कहा था, जब तक बॉडी को कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करते तब तक बॉडी हमेशा उसी जगह पे रहेगी. जब हम उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करना है, हमें unbalanced. This is very important. You should underline this thing, that is the unbalanced force. Okay, ये जो part है unbalanced, that you should remember. The unbalanced word is very important. If you apply the balance first, then body cannot move. Yesterday I have explained you the one example. If 10 kg person on left side and 10 kg person on right side pull each other, will the object move? No, because the force is equal. So to pull that object, you should have the more weight on the another side, then only object is getting move. Understood? Okay, now let's go to the second law. What is the second law? Newton said it's about the momentum. Okay, so what he said, that the rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change in momentum occurs in the direction of the force. मतलब जो मोमेंटम में जो भी चेंज आता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो एज आई मेंशन, द मोमेंटम इज मेंशन बाय P is directly proportional to the momentum. Sorry, the P is a momentum but is directly proportional to the force. जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम, राइट? एंड इट इज, so direction of the momentum is in the direction of the force. So if suppose let's say this is my object, if I apply force in this direction, means on the right side, अगर मैं फोर्स को राइट साइड में अप्लाई करता हूं तो बॉल किस साइड मूव हो जाएगी? राइट साइड. तो मोमेंटम भी कौन से साइड हो जाएगा? राइट साइड. एंड एज आई एक्सप्लेन, मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? Yes, it is a, no, it is not scalar, it is a vector quantity. I already explained you, because force is a vector quantity, so momentum is also a scalar quantity. Sorry, momentum is also vector quantity because it has a direction. I hope you understood now. Okay, let's move to the next topic, that is the Newton's third law. Now what Newton said in the third law, that every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. So this law actually it's difficult to understand, but let me simplify. Okay, now if I for example, let's take the ball. Okay, let's take the ball, and now if you put that ball, let me erase this first. Okay, now let's take the ball. ठीक है, हमने एक बॉल ले लिया और उसको मैंने जमीन पे फेंक दिया, राइट? जमीन पे हमने फेंक दिया तो क्या होगा? वो फिर से बॉल क्या करेगा? वापस जंप करके वापस आ जाएगा. तुम जितनी जोर से बॉल को नीचे गिराओगे उतने जोर से बॉल ऊपर आएगा. तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि जितना तुम फोर्स लगाओगे उतनी ही उसकी क्या होगी? रिएक्शंस होगी. सो द एवरी एक्शंस फोर्स हैज एन इक्वल एंड opposite reactions. Okay, now there is a one thing is that when one object, now there is a one explanation given in the textbook, that when one object applies a force to another object, the latter object also simultaneously apply the force on it, right? On former object.
द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कहने का क्या है कि लेट्स से there is a one standing man, okay, so when you apply the force on it, what happen, it also apply the same and equal force in this direction. So this is called as a former object and this is called as a latter objects. Okay, so yes, so this is a former object, this is a latter object. Okay, इसने इसको पुश किया, so definitely ये भी इसको पुश करेगा उसी से. So डायरेक्शन हमेशा कैसे रहता है, इक्वल इन अपोजिट. ठीक है. नाउ द आइडिया एक्सप्रेस, so the same idea is expressed in the third law of the Newton. So the force applied by the first object is called as a action force. So ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने जब फोर्स अप्लाई किया, so this is called as a action force. And the force applied by the second object, it is called as a reaction force. क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन फोर्स. तो जो फोर्स अप्लाई करता है उसको बोला जाता है एक्शन फोर्स, क्योंकि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. ओके, और अपोजिट डायरेक्शन से मुझे क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है. सो जो देगा, दिस इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन फोर्स. समझ में द डिफरेंस बिटवीन एक्शन, जो एक्शन करेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स, जो रिएक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन फोर्स. अंडरस्टूड. ओके, जैसे रस्सी खींच होती है, यू नो, वी आर ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ गेम. टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींच, यहां से हम पुल करते, वो वहां से पुल करते, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है. राइट. ओके, नेक्स्ट. नाउ आफ्टर द, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द न्यूटन्स थर्ड लॉ. राइट. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, सो there is what is the law of conservation of momentum? So law of conservation of momentum is that when no external force acts on a two interacting objects, okay, जब तक कोई फोर्स तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स पे नहीं आता है, whenever there is a no external force interacting of the object, their total momentum remains constant. Okay, now yesterday we have saw one, what is a formula of momentum? What is formula of momentum? What is formula of momentum? P is equal to mass into velocity. What is the formula of momentum? P is equal to mass into velocity. तो न्यूटन्स ने ये बोला, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये बोलता है कि जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, लेट्स से देयर इज अ टू ऑब्जेक्ट्स है. ओके, there is a two objects. For example, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है गन्स एंड इसका, बंदूक का. ओके, गन्स एंड बुलेट. ओके, सो लेट्स से गन एंड बुलेट, these are what, two interacting object. guns and bullet is a two interact object, because guns में क्या होती है, बुलेट होती है. अभी जब तक तुम उसको खींचते नहीं हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, नहीं. तो न्यूटन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मूवमेंट यही कहता है कि जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, तो उसका जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, इट रिमेन्स एट कांस्टेंट. टोटल मोमेंटम होता है वो रिमेन्स एट कांस्टेंट. कल हमने एक देखा था इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो टोटल मोमेंटम मतलब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम. ओके, तो इनका कहना क्या है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता है तो टोटल मोमेंटम मींस इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट. क्या रहेगा, कांस्टेंट. समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फर्स्ट टॉपिक समझ में आया. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड. नाउ लेट्स से व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड. ओके, अब तक इस पे कोई दो ऑब्जेक्ट्स थे, ऐसे थे, तो इसमें टोटल मोमेंटम क्या था, सेम था. नाउ लेट्स कंसिडर कि ये दो ऑब्जेक्ट है, डस्टर है और मेरे पास मार्कर है. राइट. इन्होंने क्या किया, वो, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. ओके,
नाउ लेट्स से टू ऑब्जेक्ट्स है, डस्टर है एंड मार्कर है. नाउ दे आर कोलाइडिंग ईच अदर. ये क्या हुए? कोलाइड, राइट? दे कोलाइड ईच अदर. देन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज इक्वल. मतलब दो ऑब्जेक्ट है, पहला क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा. लेकिन अभी क्या है, अभी ये बोल रहे हैं कि ये कोलिजन होने के बाद इसके पहले का जो मोमेंटम था, लेट्स से फर्स्ट मोमेंटम बिफोर कोलिजन P1 एंड आफ्टर कोलिजन था P2. तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum. Now let's try to prove that. Let's try to prove that कि now sir yes, ये हमें भरोसा नहीं रख रहे कि आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं हमारे कि नहीं सेम नहीं रहेगा. Well, let's try to prove that. Okay, let's say there is a object A. Okay, okay, let's say there is a object A. दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है. एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है. ठीक है, ऑब्जेक्ट A का मास क्या है? m1 और ऑब्जेक्ट B का मास क्या है? m2. ठीक है, नाउ एज पर द लेट्स से देयर इज अ इनिशियल वेलोसिटी इज u1, m2 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2. एज पर द मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P1? m1 u1, m1 u1 ना. व्हाट इज द टोटल मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? m1 u1 और यहां पे क्या रहेगा? P2 का m2 u2, राइट? सो सपोज दिस इज द इनिशियल बिफोर द कोलिजन. मतलब अभी कोलिजन हुआ है क्या? नहीं, बिफोर द कोलिजन. तो जो बिफोर द कोलिजन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1 और यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2. नाउ आफ्टर द कोलिजन, नाउ लेट्स से टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड ईच अदर. कोलाइड होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 और इसकी जाएगी v2. सो आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 एंड m2 v2, क्योंकि अभी वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी. सो इज दिस, सो नेक्स्ट वेलोसिटी क्या रहेगी? v1. सो फॉर्मूला बिकम्स m1 v1 m2 v2. नाउ जब भी कोई चीज, नाउ हमने एक बात पढ़ा था कि द मोमेंटम बी आफ्टर कोलिजन, मतलब जब मोमेंटम चल रहा है, सो व्हाट अप्लाई? द फोर्स इज अप्लाई. हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स थर्ड लॉ. व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब एक फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रहा है तो दूसरा फोर्स इस साइड से अप्लाई होगा, बराबर? बट फोर्स क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. सो कैन आई से दैट कि इस ऑब्जेक्ट पे जो ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा, ओके, दिस इज इक्वल टू F1 इक्वल टू F2. कैन आई से दैट F1 इज इक्वल टू इक्वल, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इतना जो यहां पे लगेगा उतना ही लगेगा, बट ये उस साइड से फोर्स लगाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स एंड दिस इज अ रिएक्शन. सो साइन क्या आएगी? माइनस. सो व्हाट विल बी द साइन? माइनस, बिकॉज डायरेक्शन उसका क्या है? अपोजिट है. सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2. उसके पहले हम कल एक और पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने प्रूफ भी किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस बिकम m1 a1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस m2 a2, बराबर? बट व्हाट इज a1? A1 is a change in velocity. So can I say that m1 is equal to v1 minus u1 upon t? कल हमने पढ़ा था, right? And this is equal to minus m2 v2 minus u2 upon t. So tt क्या होगा? Cut, right? So let's solve this bracket. m1 into v1 minus m1 into u1 is equal to minus m2 v2 plus m2 u2. Correct? Now let me use this part.
ठीक है, नहीं तो और नीचे चला जाएगा। सो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं m1 v1 माइनस, बोलो जल्दी से, u1 इक्वल टू m2 v2 plus u2 u2। So let's take the v1 terms left side. So m1 v1, ये माइनस है, इस साइड आके क्या होगा प्लस m2 v2, और m2 u2 है तो ये माइनस है, इस साइड आके प्लस m2 u1। So can I say that this is a momentum after collision? बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि v1 क्या है, आफ्टर वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है, और v2 क्या है, आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है। सो दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज मोमेंटम बिफोर, दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो कैन आई से दैट द मोमेंटम after collision and momentum before collision is equal, and this is called as a law of conservation of momentum. So momentum is always constant before and after the collision. Anything what you did not understand from here? Is there anything? You understood everything? Any question, any doubt? Everything simple? Okay, fine. So I think this is what till now we have covered. So there is a few numericals based on this law of conservation of momentum and everything, and tomorrow we will cover those numericals and everything. But till now, yes, I think this is so. Thank you so much. Yeah.